Hello students, this is your teacher, English teacher Dr. Kumari Anjali, welcoming you all in St. Michael's Academy e-learning classes. Students, in last lecture of A Letter to God written by J. Fungels, we had almost completed the chapter and few questions were left. We will discuss today. Who or what did Lencho have faith in? Lencho had faith in God, of course. What did he do? What did he do when he found that nothing was left in his field? His crops were destroyed completely. What did he do? He wrote a letter to Almighty in which he demanded 100 pesos in order to sow his field and to feed his family. And then he just posted that letter in post office. He went there to post his letter. Who read the letter? Who read the letter? The postmaster, of course. What did the postmaster do then? What did the postmaster do then? The postmaster, he showed the fact that the farmer Lencho had in Almighty, and that's why, in order not to shake his faith in Almighty, what did he do? He had given few part of his salary. He collected some money from his employees, his friend. That was a noble charity work that he had done for whom? For Lencho, in order to help him, because he has to, again I am repeating, he has to sow his field, he has to help his family, he has to feed his family. Now, two more questions are left, children. Last two questions. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, not at all. He was not surprised. What was the reason? Because he had great faith in God. He was confident, he was quite confident that he will be answered by Almighty. The God will reply him, the God will send him money. That was his faith in God. What made him angry? What made him angry? When he counted the money, he found less. He didn't find 100 peso, he found only 70. And then he was thinking, that idea came in his mind that God, he cannot make mistake in counting. At the same time, one more idea came that God didn't deny him. He didn't refuse. It means what? Somebody has cheated, somebody has stolen his money, and that's why he became angry. This is what chapter is. It is completed. Now children, some of the students are demanding again and again that ma'am, we can understand the word meanings, we can understand the chapter, a little bit Hindi should be there, at least the summary in Hindi. That's why on the demand of the students, I am going to narrate the story in Hindi. इस स्टोरी में हमारे पास एक मुख्य कैरेक्टर है, इनका नाम है लेंचो। लेंचो एक फार्मर है और लेंचो अपनी फील्ड को देखकर बहुत खुश होता है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जहाँ से वो अपने पूरे फील्ड को देख सकता है और वो पाता है कि उसकी फसल अब तैयार हो रही है, पक चुकी है, एक अच्छी बारिश का उसे इंतजार है और बारिश आती भी है। वो बहुत खुश होता है कि अब ये बारिश जो है मुझे अच्छे पैसे देंगे, इस बारिश से मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इवन बारिश को वो बिग कॉइन्स और स्मॉल कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स को वो अधिक पैसे, स्मॉल ड्रॉप्स को वो कम पैसे में कंपेयर करता है। वो बहुत खुश है। सडनली क्या होता है, बारिश जो है वो ओलावृष्टि में चेंज होती है, पत्थर छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं हेलस्टोन में चेंज हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है। लेंचो प्रे करता है, ये थोड़े विश करता है कि ये खत्म हो जाए ताकि इसके जो क्रॉप्स है वो बच जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और फाइनली जब हेलस्टोन स्टॉर्म सभी खत्म होते हैं, वो पाता है कि उसका फील्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसके जो क्रॉप्स है, उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो बहुत दुखी होता है।
वो सोचता है, वो अपने बच्चों से कहता है कि इस साल तो हमारे पास सब कुछ खाने को बचा नहीं है, हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक गॉड के प्रति, भगवान के प्रति एक फेथ, एक आशा की किरण जागरूक होती है। वो हार्ड वर्किंग है बट वो जानता है कि कैसे लिखना है। वो सोचता है कि गॉड के पास मैं एक पत्र लिखूं जिसमें मैं अपनी परेशानियों का वर्णन करूंगा और भगवान मेरी सहायता जरूर करेंगे। इसलिए वो भगवान के पास पत्र लिखता है और इस पत्र को वो पोस्ट ऑफिस में ले जाकर मेल कर देता है, पोस्ट कर देता है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है जिसपे एड्रेस में क्या लिखा है मलक में, गॉड ओनली। वो सरप्राइज्ड होता है, हंसने लगता है, उसे लगता है किसी ने मजाक किया है, क्योंकि ऐसा पत्र तो उसने कभी देखा नहीं, उसे मिला नहीं। उसके बाद वो इस पत्र को पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर व्हेन ही टुक दैट लेटर ही आल्सो स्टार्टेड लाफिंग, वो भी हंसता है। बट जब वो लेटर खोलता है वो लिख हो जाता है कि इस व्यक्ति को पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन वो उस फार्मर को महान महसूस करता है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन गॉड। भगवान में उसकी जो आस्था है उसे देखकर उसे लगता है कि इसकी आस्था को डिगाना नहीं है, एंड दैट्स वाई वो अपने एम्प्लॉयज से, अपने फ्रेंड से कुछ पैसे इकट्ठे करता है और वो खुद भी कुछ पैसे दान करता है अपनी सैलरी से। और फाइनली वो 70 पेसोस जो है कलेक्ट करते हैं और उसे पोस्टमैन के लिए रेडी करते हैं एनवेलप पर। लेटर में केवल गॉड का सिग्नेचर, एक गॉड वे लिख देते हैं, केवल गॉड लिख देते हैं। लेंचो को भगवान पे विश्वास है, इसलिए वो इंक्वायरी करने जाता है पोस्ट ऑफिस में कि क्या उसके गॉड की तरफ से कोई रिप्लाई आया है, और उसे रिप्लाई मिलता भी है। वो लेटर खोलता है, पत्र खोलता है तो जानना चाहता है भगवान ने क्या भेजा। दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस से वॉच कर रहा है, क्योंकि वो बहुत हैप्पी है, सेटिस्फाइड है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, किसी की हेल्प की है। वो हैप्पीनेस देखना चाहता है। किसके चेहरे पे देखना चाहता है? वो लेंचो के चेहरे पे वो हैप्पीनेस देखना चाहता है। लेकिन लेंचो क्या खुश होता है? नहीं, लेंचो गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो मनी को काउंट करता है वो पाता है कि अरे ये क्या, भगवान तो काउंटिंग में मिस्टेक नहीं कर सकते और भगवान ने मुझे रिफ्यूज भी नहीं किया। भगवान ने मेरे पास, गॉड ने मेरे पास पैसे तो भेजे हैं बट इसमें कम है, मैंने जितना डिमांड किया था उतना नहीं है। इट मीन्स किसी ने बदमाशी की है, किसी ने मेरे मनी को चुराया है, किसी ने मुझे चीट किया है। अगेन वो लेटर लिखता है भगवान को। क्या लिखता है? भगवान, गॉड, आपने कुछ नहीं, थैंक्स भी नहीं, वो सरप्राइज भी नहीं है, वो तो गुस्से में है। वो लिखता है कि आपने जो पैसे भेजे उसमें 70 पैसे ही मुझे मिले, बाकी पैसे कहाँ गए? गॉड, वो मुझे भेजिए बिकॉज आई एम वेरी मच इन नीड ऑफ दैट। मैं उस पैसे के लिए बहुत ज़रूरत में हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फील्ड को दोबारा फसल उगानी है, बीज बोना है, और एट द सेम टाइम मुझे क्या करना है? मुझे बीज भी उगाना है, मुझे बीज डालना है अपने खेतों में, मुझे अपने परिवार को खिलाना भी है। ये मैं कैसे कर पाऊंगा? लेकिन भगवान, अगली बार जब ये पैसे आप मुझे भेजे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजे, आप ये पैसे किसके थ्रू भेजे? किसी के नहीं, डायरेक्ट मुझे भेजे। बिकॉज ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं बहुत ही खतरनाक लोग हैं। दे आर बंच ऑफ क्रूक, दे आर क्रूकेड पीपल, क्योंकि इन्होंने मुझे चीट किया है, मेरे पैसे को इन्होंने चोरी कर दिया। ये स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी हियर वी आर कंप्लीटिंग। Now children, I hope you understood the story. I request you, instruct you that you go through the whole story, all lectures. You again you jot down the word meanings in your copy so that you will get it in your mind, and you do question answers, questions that are given at the end and in the middle of the chapter. Students, if you find any difficulty while going through the story, you have my WhatsApp number.